So now we have to proceed the remaining questions of that exercise. That is exercise question number 3. Solve graphically. Question is asked here. In this first one is a 2x minus 3 greater than equal to 0. Okay, 2x minus 3 greater than equal to 0. It is the first question. So let us solve them. How to solve them? Very simple one. See here now. 1 minute. So, okay. 2x plus 3 2x minus 3y greater than equal to 0. How to solve that one? We have to consider the line. Consider the line. The equation is we can write properly here. Consider the line whose equation is consider the line whose equation is what is the equation of that one? 2x minus 3 greater than equal to 0. So we can write here 2x minus 3 equal to 0. That is we can further solve here. That is 2x minus 3 equal to 0 means 2x is equal to 3 means x is equal to 3 by 2. That is x is equal to what? 3 by 2. It is the line. It is the inequality. Greater than equal to 0 means it is the inequality. Our first work is to convert into the equation. So for that purpose, we have considered the line whose equation is 2x minus 3 equal to 0. Further solving, we got here the value of x is equal to 3 by 2 is there. Now, proceed to the next part. Okay. So as you know that is the line x is equal to 3 by 2. It means this is the line. This line is parallel to y-axis. This line is nothing but this line is parallel to which one? It is parallel to y-axis. Y-axis, and it is passing through and passes through which point? It is passes through the point 3 by 2 means y-axis coordinate, y coordinate 0 is 3 by 2 comma 0 is there. So this is the line which is parallel to y-axis and it passes through 3 by 2 comma 0 here. So first of all you have to draw the line. Which line? X is equal to 3 by 2. तो अपने को सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. तो x is equal to 3 by 2 मतलब ये साइड में ड्रॉ करेंगे अपन यहाँ पर. This one x is equal to 3 by 2 means something like to be it is a 0, then 1, then 3 by 2 means 1.5 there. Okay. So in between 2 and this one there is a line x is equal to 3 by 2 is there. Okay. So we draw the line of that one x is equal to 3 by 2. This is the line. Now important thing is that which portion you have to state it because it divides the portion into two parts. तो ये हो गया ओरिजिन वाला साइड और ये हो गया नॉन ओरिजिन साइड. अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा पोर्शन स्टेट करेंगे अपन. तो सबसे पहले देखो हर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 4 क्वेश्चन है. हर एक क्वेश्चन एक ही टाइप का है. तो ये स्टैंडर्ड टाइप देखो. सबसे पहले ये लाइन का दिस इज द इनइक्वालिटी. फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनइक्वालिटी इनटू द इक्वेशन. इक्वेशन कब मिलेगा? जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 0 का सिंबल हम रिप्लेस करेंगे इक्वल टू 0 से. ठीक है. तो इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद इसमें से वैल्यू आई ऐसा आई 2x is equal to 3. It means x is equal to 3 by 2. It is the value of that equation. That is x is equal to 3 by 2. ये आते ही अपने समझ में आ गया कि this is nothing but this is the parallel to this is the line. It is parallel to y-axis and passing through the point. कहाँ से पास है? 3 by 2 comma 0 में से पास है. इसलिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ करें पहले x is equal to 3 by 2. So here now what happens now here? So here बीच में ज्वाइन करना पड़ रहा है. इससे टाइम लगेगा. एक बार टाइम दिए वाला है वही टाइम पे जल्दी से ज्वाइन हो जाओ. टाइम पास नहीं हो. So this line is parallel to y-axis and passes through that one and draw the line x is equal to 3 by 2. अब इसका चेक करेंगे अपन सॉल्यूशन सेट इसलिए चेक करेंगे तो द सॉल्यूशन सेट समझ में आएगा कि लाइन का इधर का पोर्शन है कि लाइन का इधर का पोर्शन है. तो कल बताया था यहाँ पे सॉल्यूशन सेट कैसे. नाउ टू चेक द सिलेक्शन पॉइंट to find the solution point, to find the solution set, comma, check the point. और यहाँ पे देखो अगर से लाइन ओरिजिन से अलग से है तो सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट चेक करेंगे? ओरिजिन पे.
है ना। समझो फॉर एग्जांपल लाइन अगर से ओरिजिन में से पास है तो वी हैव टू चेक द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, and suppose if the line is not passing through the origin, then we have to find the solution set, we have to check the points of origin, we have to check the point, we have to check the origin with respect to the line, we have to check the origin with respect to the line। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे लाइन के हिसाब से। तो क्या मिलेगा जब ओरिजिन के हिसाब से when x is equal to 0, जब x is equal to 0 इसमें रखेंगे अपन ये लाइन की इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा 2 into 0 minus 3 that is equal to minus 3, 2 into 0 is equal to minus 3। अरे टाइम पे एडमिट हो यार, बहुत टाइम लग रहा है इसमें, टाइम पास हो रहा। सगळ्यांना सांगितलं दिलेल्या टाइमवर तुम्ही जॉईन झाला तर मध्ये मध्ये टाइमपास होणार नाही, मला पुन्हा जाऊन किती जॉईन करावं लागतं। तो देखो यहाँ पे टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट, चेक द ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो व्हेन x इक्वल टू 0 इसको रखेंगे ये लाइन केस में, तो 2 into 0 0 0 minus 3 that is equal to minus 3। अब ओरिजिन का पॉइंट रखने के बाद ये आया -3, जबकि अपने पास जो इक्वेशन है 2x minus 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इसका आंसर कितना आया -3। इट मींस इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन सैटिस्फाइड नहीं है। सो व्हाट वी हैव डन हियर, इट मींस हियर it comes to be -3, it means that is not यहाँ पे greater than equal to 0 है, यहाँ पे आंसर कितना है अपना -3, it means it is not greater than equal to 0, मतलब ये पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब therefore what we can say again, therefore the coordinates of origin, therefore the coordinates of origin do not satisfy the inequality or the given inequality, therefore the coordinates of origin do not satisfy the given inequality। अब ये अगर से ओरिजिन ने इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करी तो therefore the solution set, अगर आप लिखेंगे नहीं तो कैसे लिखेंगे, therefore the solution set is a line x is equal to 3/2। अगर से सेटिस्फाई होंगी तो कौन सा पोर्शन, ओरिजिन के साइड वाला, और अगर से सेटिस्फाइड नहीं है तो नॉन ओरिजिन के साइड लाना। तो कैसे लिखेंगे अपन, therefore the solution set is the line, मतलब ये line x is equal to 3/2 and the right side of the line x is equal to 3/2, it is the our solution set, this one, this is the solution set of that one, very simple one। एक बार देख लो सब में एक ही पैटर्न है। तो सबसे पहले जो लाइन दी वाली है, इनइक्वालिटी दी वाली है, सबसे पहला काम we have to convert the given equality into the equation 2x minus 3 equal to 0। Then let us solve them, that is x is equal to 3/2 is there। now what happens now here, as this line is parallel to x is equal to 3/2 means this is a line parallel to which one, parallel to y axis, and which point is passes through, it passes through the point 3/2, में से पास है 3/2 0 में से पास है, it touches the x axis। उसके बाद इतना मालूम होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे x is equal to 3/2, first we have to draw the line x is equal to 3/2। now to find the solution set, for finding the solution set, जब हमें solution set निकालना है तो सबसे पहले to find the solution set निकालने के लिए check the origin with respect to the line और check the coordinates of origin। सबसे अच्छा coordinates of origin, क्यों, तो अगर से लाइन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर से लाइन ओरिजिन को छोड़ के है तो सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए वी हैव टू चेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इन दैट वन। और अगर से समझो लाइन ओरिजिन पे है तो अपन क्या करेंगे, ओरिजिन को छोड़ के दूसरे पॉइंट चेक करेंगे। जैसे कल अपन ने देखे थे ओरिजिन पे आने के बाद अपन पॉइंट्स ले रहे थे 1,1 में अगर से कंडीशन सेटिस्फाइड करा तो लाइन का लेफ्ट साइड, और अगर से नहीं करा तो लाइन का राइट साइड। तो यहाँ पे अब जो लाइन है ये ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन को छोड़ के। तो सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए पहला काम क्या करेंगे, चेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, मतलब ये जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है ये लाइन में रखेंगे, ये लाइन है। तो लाइन में रखने के बाद ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या रखते हैं 0,0,
तो इसमें सिर्फ इक्वेशन में x है, इसलिए जब x इज इक्वल टू 0 है तो पॉइंट कितना है 2 इंटू 0 माइनस 3 मतलब कितना -3। ये अगर से -3 है मगर इनइक्वालिटी कैसी है अपनी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब पॉजिटिव है और आंसर में कितना आया -3 है मतलब ये नॉट सेटिस्फाइड है। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई और डू नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। जब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो उस समय कौन सा पार्ट लाइन का राइट साइड वाला, देखो ना ये लाइन के कितने पार्ट है, दो पार्ट है, ये मतलब ओरिजिन वाला और ये मतलब नॉन ओरिजिन वाला। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ओरिजिन के साइड वाला और जब नहीं करेगा तो नॉन ओरिजिन के साइड वाला, ऐसा शेडिट करेंगे अपन। तो यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, therefore the solution set of the given equation is the line। ये given equation का solution set करेगा line x is equal to 3/2 and the right side of the line x is equal to 3/2। That is the answer। और बाद में क्या which is shaded in the graph, जो कि ग्राफ में अपन ने शेड करे वाला है। तो सब में एक ही पैटर्न रहेगा। देखो ये का पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर 2y - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो तुमको सब क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, एक एक जो बताया मैंने तो सब क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। देखो सब में एक ही पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द लाइन हुज इक्वेशन इज, सबसे पहले इनइक्वालिटी का कन्वर्जन इक्वेशन में करो 2y - 5 इक्वल टू 0। मतलब इस क्या that is we can say that here y is equal to what, y is equal to 5/2 is there। okay now so here y is equal to 5/2 is there। now this line is up karo, y is equal to 5/2 means it touches the y axis। so this line is parallel to y axis पर टच है तो किसको पैरेलल रहेंगी, x axis के। this line is parallel to x axis and passes through the point। कौन सा पॉइंट में से पास है बोलो, पैरेलल में x एक्सिस मतलब y को टच है मतलब x का कोऑर्डिनेट 0 0, 5/2 सही था। तो सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, ड्रॉ द लाइन x इज इक्वल टू 5/2। अब वही पॉइंट अब देखो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे अपन x इज इक्वल टू 5/2 कहां पे आ रही है पहले वो देखो फिर उसके बाद अपन देखेंगे। सो फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5/2। तो देखो कहां पर आई y is equal to 5/2 आ रही कहां पर, y is equal to 5/2। so what happens when y is equal to 5/2 मतलब ये ओरिजिन हो गया, 5/2 मतलब समथिंग लाइक टू बी 2.5। तो यहाँ पर 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 ये दोनों के बीच में 2.5 कहीं तो भी ऐसी लाइन है। दिस इज द लाइन y is equal to 5/2 is there। ठीक है, अब वही क्वेश्चन The most important question is that इसका ये लाइन का सॉल्यूशन सेट कौन सा रहेगा, इसके नीचे का पोर्शन रहेगा या इसके ऊपर का, मतलब नीचे का पोर्शन मतलब ओरिजिन साइड वाला रहेगा या फिर नॉन ओरिजिन साइड वाला। सबसे पहली बात, one of the most important thing is that the line is not touching the origin। सबसे पहली लाइन ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन को छोड़ के। तो जब भी लाइन ओरिजिन को छोड़ के रहेंगे तो टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट वी हैव टू चेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इन दैट लाइन। तो वही देखो टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट, यहाँ पे ड्रॉ द लाइन कौन सी अपने पास y is equal to 5/2। ओके नाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट चेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। क्यों, बिकॉज़ जो लाइन है वो ओरिजिन को छोड़ के रहेंगे तो अपन क्या करेंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा चेक करेंगे। और अगर से ओरिजिन पे ओरिजिन को छोड़ के दूसरे पॉइंट पर लेके थे अपन ने फिलहाल अभी anybody have problem, audio mute करा, audio बंद करा, हाँ yes। So here now, so what happens to that case here, to find the solution set check the coordinates of origin with respect to the line। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे ओरिजिन मतलब क्या है, ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या 0,0। अब इक्वेशन इस y में है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, when y is equal to 0, तो 0,0 दोनों भी है। यहाँ पे पूरी इक्वेशन y में है इसलिए इसका कोई काम नहीं है, इसलिए अपन y is equal to 0 रखने के बाद देखो चेक द इक्वालिटी तो कितना मिलेगा 2 into 0 minus 5, 2 into 0 minus 5 means what, -5। अब बोलो
इनइक्वालिटी एक्चुअल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रखने के बाद ये कितना है, नेगेटिव में है, मतलब -5। ये अगर से +5 आता था, समझो फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर इफ इट इज +5 देयर एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी क्या थी, सेटिस्फाइड थी। तो उस कारण से अपन कौन सा पोर्शन शिफ्ट कर देते, ओरिजिन के साइड वाला। मगर यहाँ पे 2 into 0 0 and it is a -5 there, -5 आने के कारण ये हो गया, it not satisfy the given inequality, means it is not greater than equal to 0। इसका मतलब the coordinates of origin does not satisfy the given inequality। इस कारण से ये लाइन का सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, therefore the solution set is the line y is equal to 5/2 and the upper side of the line y is equal to 5/2। this is the answer of second question। upper side means this is the shaded portion is here, this is the shaded portion above the or upper the y is equal to 5/2 is here। this is the answer of that one, question number 2। so there are 4 questions in that one, सभी क्वेश्चन उसी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का है। आप ये जो ये टाइप के सब में रखने का, सबसे पहले इनइक्वालिटी का इक्वेशन में कन्वर्ट करो, उसमें से एक वेरिएबल x या y की वैल्यू मिलेगी, उसमें से समझ में आएगा, समझो y है तो ये लाइन किसको पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और क्या में से पास है, 0,5/2 में से पास है। तो सबसे पहला काम, वी हैव टू ड्रॉ द लाइन y is equal to 5/2। फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन y is equal to 5/2, दिस इज द लाइन y is equal to 5/2। Now important thing is that to find the solution set we have to check the coordinates of origin। तो coordinates of origin कब चेक करेंगे, यदि लाइन origin से पास नहीं है, origin को छोड़ के दूसरी जगह है, तो उस टाइम पे origin के coordinates चेक करेंगे। और कभी अगर से लाइन origin पे ही आ गई तो उस समय origin के coordinates नहीं चेक करेंगे, बल्कि दूसरे coordinate जैसे कि 1,1 2,2 ऐसे coordinates चेक करेंगे। अभी के लिए लाइन ओरिजिन को छोड़ के है, इसलिए हमारा पहला काम, वी हैव टू चेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो ओरिजिन के अपन जो कोऑर्डिनेट्स है लाइन में रखेंगे, लाइन में रखने के बाद ये -5 आया, मगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ने ये इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करा। जब इनइक्वालिटी ने सेटिस्फाई नहीं करा तो कौन सा पोर्शन आएगा, लाइन का। अगर से करता है, देखो ना ये लाइन है, ये लाइन का ओरिजिन साइड, इफ इट इज सैटिस्फाइड देन द ओरिजिन साइड इज शेडेड हियर, और अगर से सैटिस्फाई नहीं करता होगा तो नॉन ओरिजिन साइड अपन शेड करेंगे। तो अभी तो फिलहाल सैटिस्फाइड नहीं है, इसलिए कौन सा पोर्शन शेड होगा, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। सो इट इज द क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन सॉल्व इट इजीली, ये आप आराम से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। So without any time pass, we proceed to the next question. That is question number 4 is there, है ना। आ जाएंगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बता दो इसमें से, नहीं इससे कोई तो आवश्यकता नहीं है। देखो एक लास्ट क्वेश्चन, फिर भी तो यहाँ पे है सब कॉपी पेस्ट करने का खाली, 3x + 4 < 0। ठीक है, सो कंसीडर द लाइन, फर्स्ट लाइन इज 3x + 4, 3x + 4 = 0। इट इज इक्वेशन 3x + 4 = 0 means find the value of x। What is the value of x? 3x = -4, so x is equal to -4/3 there। So x is equal to -3/4। x कितना आ गया, -3/4। बोलो ये लाइन किसको पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल आएंगी, और कौन से पॉइंट पे से पास है, माइनस उल्टा हो गया, x is equal to -4/3 there। ठीक है, x is equal to -4/3 there। तो कौन सा पॉइंट में से पास है, -4/3, 0 में से पास। तो सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ द लाइन x is equal to -4/3 is there। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो करो, -4/3 मतलब कहां पर, here now when it comes here x is equal to -4/3 कहां पर आएगा, बोलो। x is equal to -4/3 मतलब वो यहाँ पर आएंगे, देखो लोअर पास यहाँ पर आएगा, x is equal to -4/3 मतलब यहाँ पे अंदाज यहाँ पे लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस वन, ये होगा x is equal to -4/3।
It is parallel to which one? Parallel to axis. Now say to find the, अब ये लाइन origin पे है क्या? This line does not containing the origin. Origin को छोड़ के तो कौन से coordinates check करेंगे अपन? Origin के. So to find the solution set, check the coordinates of origin with respect to the line. जब लाइन के coordinates अपन इसमें रखेंगे origin में, ये origin के coordinates लाइन में रखने के बाद क्या मिलेंगे देखो. When x equal to 0, 3 into 0 plus 4, that is equal to plus 4. प्लस 4 मतलब इट इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पॉजिटिव आ गया. आप इनइक्वालिटी क्या है? नेगेटिव है, मतलब इट डज नॉट सैटिस्फाई लेस देन इक्वल टू 0. तो सेम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन डू नॉट सैटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी, सो द सॉल्यूशन सेट इज नथिंग बट कौन सा आएगा? ये लाइन का ओरिजिन का, नॉन ओरिजिन का, नॉन ओरिजिन का साइड, मतलब कौन सा? दिस वन व्हिच इज शेडेड इन द ग्राफ ऑफ दैट. So it is our question number 3 is there. Okay. So it is our question number 3 is there. तो सब एक ही टाइप के, बस कॉपी पेस्ट करने का है. 4 पैकी 3 तो सॉल्व करून दिलं, बाकी काम तो हम इजीली कर सकते हैं. Now we proceed to the next part of that one. There is question number 4 is there. So question number 4 देखो, ये भी सब में एक ही पैटर्न है, इसलिए कोई खास बात तो नहीं है. Question number 4 here now. क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सॉल्व ग्राफिकली, सब में ग्राफिकली. पहला क्वेश्चन है x plus 2y लेस देन इक्वल टू 6 इज देयर. तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन इज देयर. x plus 2y लेस देन इक्वल टू 6. तर याच्यामध्ये काय करता येईल ते बघा. आता सर्वात पहिले लाईनचा कोऑर्डिनेट, चालेल का? ओके. टाइम वर जॉइन व्हावा, वेळ सांगेल तुम्हाला, पुन्हा पुन्हा जाऊन त्याच्यावर. सेम क्वेश्चन इज देयर, आंसर भी सेम. तो सबसे पहला काम इसका, कंसीडर द लाइन whose equation is what is the equation of that one? X plus 2y is equal to 6 is there. So as in that one there are two variables. अभी तक के क्या था? एक ही वेरिएबल था, है ना? जैसे कि 2x minus 3 greater than equal to 0. हे बघा दोघांचा डिफरन्स काय? तिसरा क्वेश्चन, तिसरा आणि चौथा क्वेश्चन मध्ये 2x minus 3 greater than equal to 0, 2y minus 5 greater than equal to 0. This equation containing only one variable. इस सब में एक ही वेरिएबल था, x या फिर y. But now in question number 4 it containing the two variables. जो टू वेरिएबल्स रहेंगे तो कौन सा कैसे करेंगे? here now. तो सबसे पहले वही काम, consider the line whose equation is x plus 2y is equal to 6. Now if it containing the two variables, so it changes here. यहाँ पे पूरा चेंज देखो अभी कैसे करेंगे. यहाँ पे एकदम सिंपल वे आता जॉइन केली मस्त रहा. ऑप्शन है का? यस, एनीबॉडी हैव कोई कोण डाउट है का? झालं जॉइन. कॉल का ऑप्शन है का? ऑडियो म्यूट करा आप आपले. Okay. So in question number 3, now it containing the two variables. तो लाइन एक्चुअल कोऑर्डिनेट एक्सिस को कौन से पॉइंट पर टच कर रही है? तो ये पूरी लाइन मिलेगी. इट कंटेनिंग टू वेरिएबल मींस वी गॉट अ कंप्लीट लाइन. तो अभी कंप्लीट लाइन एक्चुअल कोऑर्डिनेट एक्सिस को कौन से पॉइंट पर टच कर रही है, ये पहले अपने को निकालना पड़ेगा. तो टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड point of intersection, find the point of intersection with coordinate axis, with the coordinate axis. ये लाइन क्या निकालना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इस कारण से सबसे पहले ये कौन सा ऑडियो चालू है का? ऑडियो म्यूट करा. जी बढ़िया, ऑडियो म्यूट करा. कोणाचा चालू आहे? ऑडियो म्यूट करा.
अजून चालूच आहे, कोणा साइड चालू आहे? सो to find the point of intersection with the coordinate axis, put y is equal to 0. पहिला पॉइंट y is equal to 0 पुट अप करा. y is equal to 0 पुट अप केलं तर पहिला पॉइंट काय भेटेल तुम्हाला? x is equal to 6. त्यानंतर x is equal to 0 पुट अप करा या लाइन मध्ये, तर y is equal to किती भेटणार? 2y is equal to 6 म्हणजे y is equal to किती? 3. हे कळालं? It containing the two variables. So first of all, you have to find out the point of intersection of this line with the coordinate axis. म्हणजे हा x axis ला आणि y axis ला कोणत्या पॉइंटला भेटणार आहे त्यासाठी आपण पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढणार आहे. So how to find that one? Put y is equal to 0. सबसे पहले इसमें y is equal to 0 रखो. तो ये 0 हो गया. तो x is equal to कितना मिला? 6. उसके बाद अगर से हम x is equal to 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा? 2y is equal to 6 मतलब y is equal to कितना? 3. तो इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए कि ये लाइन x एक्सिस को 6 पॉइंट पे और y एक्सिस को 3 पॉइंट पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है. तो see now what we have done here. Okay, so here you have to check the or you have to draw the graph first of all. तो कहां पर x is equal to 6 मतलब यहां पर x is equal to 6 और y is equal to 3 मतलब अंदाजा ले लो ना, ये 0 1 2 3 मतलब यहां पर. तो एक्चुअली लाइन कहां पे टच हो रही है? ऐसी x is equal to 6 और y is equal to 3 मतलब ये लाइन ऐसी है जा रही है. दिस वन, दिस इज द लाइन है ना. ये लाइन इसको नाम दे दो, इसके कोऑर्डिनेट्स के नाम दे दो. x is equal to 6 मतलब दैट इज इसका पॉइंट दे देंगे अपन नाम a of 6, 0 और इसका कोऑर्डिनेट दे देंगे अपन b of 0, 3. तो समझ में आएगा ज्यादा था. ये लाइन ab होगी 6, 0 और ये दूसरी पॉइंट हो गया 0, 3 मतलब लाइन ab की इक्वेशन. Now it is a line AB equation. Now the important thing is that वही काम. अब बोलो ये जो लाइन है ये ओरिजिन पे आई क्या? ओरिजिन से पास है क्या? नहीं है, मतलब अदर देन ओरिजिन है. वही काम. To find the solution set we have to check the coordinates of origin in terms of with respect to line. है ना. अब देखो अभी क्या है कंसेप्ट. लाइन ऐसी आ गई, AB लाइन ऐसी आई, ये ओरिजिन से पास है क्या? नहीं. जब कभी लाइन ओरिजिन से पास नहीं है तो पहला काम क्या? वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट, चेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू लाइन. लाइन के साथ चेक करेंगे अपन. वही से टू फाइंड सॉल्यूशन सेट कॉमा चेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन मतलब क्या? एक्चुअल 0, 0 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन. जो लाइन दी वाली है उसमें रखो. तो 0, 0 जब ये लाइन में रखेंगे तो लाइन क्या मिलेंगी? देयरफॉर लाइन इज नथिंग बट x + 2y मतलब क्या? 0